सभी का फिर से जोहार, नमस्कार। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हिस्ट्री में पीजीटी की। क्या कहते हैं कि 326 ईसा पूर्व This is a very significant date in the course of the history of the country. You know better why. Because a Greek king or an invader Alexander invaded India and he fought with Porus. I am very sure that you must have been very known to this battle, this event. You know the name of the battle, in fact, the Battle of Hydaspes, right? In Greek and in English, it's called the Battle of Hydaspes. So, what are the significance of this incident? That it actually opened the gateway for the Indo-Greco relationship international. So, as and so, you also find the reference of Chanakya, Chandragupta Maurya, the establishment of Mauryan Empire, right? Then also you found that ambassador was sent later on, okay? Megasthenes, Seleucus Nicator was sent, and then you find that there is a reference of, he wrote a book called Indica. So there was a reference of India that was actually been discovered going through the Greek references book, that is Indica, which finally establishes the ancient Indian civilizational stuffs in the country, that actually laid the fundamental of platform of basis of civilizational stuff. It actually concretized those theories. At least this date becomes significant that India in 326 BC there was a civilizational stuff. But now wait, what happened after that? You must be knowing there were a lot of invasions like the Hunas in the ancient time. Then after Arabic Turco invaders, they were there, all right. Then you read about the arrival of the Mughals. Then you read about the arrivals of the Britishers. Now why I have actually fast forwarded this timeline? Can you guess about this? Now, directly jump to this date, 1826 AD. Okay, not too far right now, from right now, present moment, around more or less 200 year of difference. Okay, so at this point of time, a British adventurer in Hindi it means khoj karta, right? You may somewhere find about like it, the discoverer or something like this, but adventurer is a correct term to use. So his name was Charles Mason. His name was Charles Mason, and what happened? You will be simply get very curious to know about that. He stood on a mound. You know mound? Hindi it's called tila. In the very second class, I told you about this thing. What is a mound and how do you extract from this thing? So he stood on a mound that was on the bank of the river Ravi. Ravi in today's Punjab, but today's Punjab that is actually given to Pakistan. So Pakistan portions of Punjab on the bank of river Ravi, he stood in a village on a mound. Fine. Okay. Now he thought that this would be the reason. This is the place actually, not reason.
Specifically, this is the place where the Battle of Hyder Pass, it means that Alexander would have fought whom? Porus, here only, and this must be the remaining of this battle war, okay, because there was no information about what? This event, okay. After that, a British person, namely Alexander Burnes, he too visited this place, but he was actually very ignorant about any kind of understanding or finding of this place. But as in British officials, he was there. In Hindi, whoever are you listening, I will just give a overview in Hindi. After later on, just let me establish this fact. Okay. So what happened? That this was the time of 1826. Then in the 30s it happened. Now fast forward to 1850s. Means in the decade of 1850, what happened? Another gentleman who by designation was a military engineer, but he had a deep passion in what? Archaeology. His name was Alexander Cunningham. Okay, his name was Alexander Cunningham. He visited this site now. This site, the name of this village is called Harappa. Okay, but he found some remains of there, but he wasn't that much impressed. He thought it to be like some localite, any other culture like the Sot culture that actually you find in Bikaner or any other culture. Okay, so he thought how big and how significant this culture would be. So he thought of that, okay fine, let it be like this. And the second thing was that his designation was of military engineer. Okay, he had just passion, interest in archaeology. All right. Now what happened? After something 18 to 20 years, in 1870, he again visited this place. Now as the designation of this, and now is a position having DG, means Director General of ASI, Archaeological Surveyor of India. ASI, now he visited this place, means the bank of river Ravi in Punjab, in Sahiwal district itself. Okay, that village was Harappa, and in 1870 he visited that site because of the recall of that memory, and he found that the railway contractor there are extracting bricks. You know how funny is this? They are actually extracting bricks from here for the layment of the pavers over there, so that they can put the heavy bars of railway tracks there. Okay, and he immediately stopped at those things. Wait, what are you doing, man? And when he actually conducted a little amount of excavation there, what did he found? He found potteries, he found silks of bull, he found some artifacts, and most importantly, he found a kind of tab or material, something in which there was something written in a language that not only in 1872 but even now in 2022 hasn't been deciphered. So he found a script that is yet to be get deciphered. So these all things actually jingled up his mind,
and he was left very curious that means I have been working here for last 20, 30, 40 years. He have been roaming around, hovering around over and here this period, but the kind of materials, excavations remaining that he actually found was pottery, was seal of bull, what artifacts were script. Even a script means they had a language. In fact, this is something very tremendous, groundbreaking. So what happened then after? What happened then after? For the next odd 50 years, nothing much happened. You okay? Nothing much happened. But with the appointment of Governor General Lord Curzon, you must be knowing from 1899 to 1904, for 5 years, okay? He actually brought up some refinement, some modifications in the Archaeological Survey of India. So finally, now another 3 important years in date occurred. When? In 1821, Dayaram Sahani start to excavated Harappa. So motivated by him, in the very next year, in 1822, R.D. Banerjee started to excavate Mohenjo-daro. Now Harappa is where? In Punjab region of Pakistan. And where is Mohenjo-daro? In Sindh, Larkana district of Pakistan. So that was that high in the north side, and that was that in the bottom of the Pakistan region. So these two when site were began to get excavated in 1820. Sorry, these dates are 1921 and 1922. Actually, that was in the continuation with the dates that actually I have been dealing with. So in 1921, Dayaram Sahani excavated Harappa, started to excavate Harappa. In 1922, R.D. Banerjee started to excavate what? Started to excavate Mohenjo-daro, and after 2 years, good 2 years, in 1924, who actually headed the Archaeological Survey Department, who? Sir John Marshall. He himself declared and proclaimed towards the media and the Western world that he has discovered an ancient civilization in India, because it wasn't yet partitioned, so it was an Indian subcontinent. For that, for the sake of administration, that region came to the colonial Indian part. So he mentioned that a new civilization has been discovered on the surface of the Indian subcontinent. And probably he named either it, because it wasn't formalized that time, it could have been a Harappa or a Mohenjo-daro, but whatever that was, he said that in the valleys of the Indus, a civilizational remaining at 2 important sites has been found, and that pushed the Indian historical dates not for only 1000, 2000 years, but for good 2500 years from when? From this to something around this or something around, this is 5, this. So now why I mentioned this that, and why I mentioned about the Alexander and Porus case was because earlier the understanding about the beginning of genesis of Indian established civilizational stuff began from this date only, and that was 3000 to 326 BC with the arrival of the Alexander the Great. Okay, but
with the discovery of and with the formal announcement of this civilization, the date was actually pushed back for 2500 good years, and that was something around this. So it was about 3000 BC to 2500 BC, and that actually took the world, shook the world. That actually took the world with wonders. Oh my God, why? Because this date actually put India with its contemporary civilizational. Who were they? Mesopotamia and Egyptian, and this is. So now Indian civilization was as par, they were on par with those Mesopotamian and Egyptian civilization. Means at this point of time, Indians, you can say that we had concluded with the furnished information, archaeological sources and literary sources, although they were not discovered, but by radiocarbon dating, you can actually furnish this, that India has one of the ancient civilization along with Mesopotamia, Egypt, China and this. So this is how I actually put my background with the study of, with the teaching of Harappan civilization and Indus civilization to you. My name is Achal Pridarshi, and this is my brief introduction. I have authored a few books, including Jharkhand Plus in 2 editions. As of now, 2nd edition has come this year, and apart from that, I have also authored academic book Tribalpedia. Apart from that, I am also in current working on history book for UPSC prelims, and maybe some more in future. Apart from that, I am research assistant at TRI, Ranchi, and I have been working on the Santhals for last 8 months, and paying tribute to them, I have actually published another book on them, on the folk culture. Folk culture in Santhal is known as Horsering. So I have titled that name, Horsering. Apart from that, I have documented the work profile of Forest Department, Jharkhand government, during my graduation, post-graduation, and later on when I was preparing for UPSC examinations. You can find those evidence even on YouTube on my channel. And then I have appeared to interview in JPSC. And finally, I am a UGC NET qualified with a certification from Harvard Divinity School, and it's on religion, peace and conflict initiative. So that's just my brief introduction, and these are my books, you can see. Fine. So I have talked a lot about myself, right? Now let's talk about the content of this class. So maybe for most of you people, this is the class of PGT, but basically I also deal about the history optional, and Jharkhand would be my another paper when we talk about JPSC prelims or mains examinations. So this is the topic of the day, Harappan civilization or Indus Valley civilization. As you must have been knowing for right now, अभी तक आपने ये चीज़ जान लिया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली जो साइट थी जहाँ पे पहली जो साइट थी जहाँ पे इसकी एक्सकेवेशन हुई थी, खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा थी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि चार्ल्स मेसन 1826 में इस जगह पे गए, उसके बाद आपके अलेक्जेंडर बर्न्स वो भी इस जगह पे गए, उसके बाद 1872 में और उससे पहले भी अलेक्जेंडर कनिंघम एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुरातात्विक विभाग ASI, वो उन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन शुरू कराई थी। फिर मैंने आपको बताया कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक्सकेवेशन शुरू की, और 1920 में और 1921 में RD बैनर्जी ने यहाँ पे शुरू की थी। कहाँ? मोहनजोदड़ो में शुरू की थी। और फाइनली 1924 में सर जॉन मार्शल उन्होंने फाइनली अनाउंसमेंट किया था
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब उस समय नाम तो नहीं था, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन सभ्यता का एग्जिस्टेंस है कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आगे बढ़ाते हैं हम कंटेंट के साथ। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील विथ इज द नेम। इसके नामकरण कैसे कैसे होते हैं और फिर नामकरण के साथ उसका सिग्निफिकेंस या कि इसकी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसकी कैसे इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो पहला जो है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको ये भी इस नाम से जाना जाता है, या फिर इंडस सिविलाइजेशन, सैंधव भी हिंदी में बोलते हैं, या सिंधु घाटी या सैंधव बोलते हैं, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और जो नाम है वो ये दिया जाता है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, हिंदी में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि जहाँ तक आपको पता होगा अगर इस तरीके से इंडस नदी, ये आप जांच करके बाद वहाँ से फिर घूम जाती है यहाँ पर जा करके, तो ये इंडस नदी निकलती है और इधर कहीं से ये गंगा नदी जाती है, तो ये जो बीच का जो रीजन था ना, ये आज की डेट में हाखरा घग्गर रिवर जो है उसका एक एरिया है, जो लुप्त हो चुकी है, यानी कि सरस्वती रिवर उसी का रिवर कोर्स माना जाता है। सो दिस इज एक्चुअली आइडेंटिफाइज एट द लॉस्ट यस्टरईयर रिवर, सरस्वती रिवर, ऑल राइट, एंड today's the Ghagra Hakkar river channel actually lies here, and that is the reason why mainly Sindhu Saraswati civilization, it is also known by this name. Fine. Apart from that, Bronze Age civilization. What is a bronze? Bronze is an amalgamation metal. Amalgamated metal means a metal that has actually at least two metals within itself. Like when iron and chromium meets, it becomes stainless steel, it becomes steel. So that's how when bronze, when copper and tin are amalgamated, you can say fusion, you can say mix, but when you talk about metals in particular, so when metals are chemically mate, that process is called amalgamation, and that is the reason why I have been using this term amalgamation. So when tin and copper are amalgamated, it gives bronze. तो कांसा, हिंदी में कहे तो कांसा कैसे बनता है, तो तांबा और टीन इन दोनों के मिलाने से कांसे की शुरुआत होती है, जो कि इस सिविलाइजेशन के यानी कि सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑल राइट, और इसके अलावा इसको फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन यानी कि प्रथम नगरीय क्रांति ये भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, चाहे कि जो भी 7 बड़े बड़े शहर हैं, ऐसे तो इसके 12, 13, 1400 से ज़्यादा साइट्स हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं, बट एक्सकेवेशन उसमें से कम से हुए हैं। और नगरों की संख्या यानी कि डिक्लेरेशन टू बी कॉल्ड टाउन, टाउन इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस ना, जहाँ पे आपकी ट्रेड होता होगा, जहाँ पे आपकी नगर संचालित जो भी होती है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो टाउन हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर लाइक, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। फाइन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीरियड के बारे में। ये इसके वेरियस पीरियड्स हैं, इसको डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि ये प्रणेता हैं, यानी कि दिस आर द प्रोपैगनिस्ट ऑफ द थ्योरी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, एंड व्हाई they have given their own reason. Now we will talk about the population, ethnicity, based on ethnicity, who were those early people who can be called the localites of the Indus Valley civilization or something like this. So these are the names of the races that we are going to discuss about in later classes. फिर ये हमारा एक मैप होगा, you must be knowing
the western margin of Indus Valley civilization is in Balochistan, currently in Pakistan, and that is Sukta Gendor. Okay, and this is this site. The northernmost site is in Kashmir, that is called Manda, and the easternmost side is in Bareilly district in UP, and that is called Alamgirpur. And the southern side, fine, to some they call it Rangpur, and to some they call it Daimabad. So we will let you know in the later classes what is that. Also, this is a brief information about, I have actually tried to create for you people a mind map, fine, and so that you can retain most of it in a minimum course of time or in a minimum page. So this is the mind map of the prominent cities like Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, Dholavira, Surkur Data, and Tada and Chanudaro. All right, that is a quite tongue twister kind of name. And then we are going to talk about the highlights. Highlights, not the features, but the highlights of this civilization. Later on, we are going to take in detail for the Hindi and the English and the Hindi audience हमारे क्लास के लिए. उनके लिए मैंने कोशिश की कि कुछ मैं हिंदी में आपके लिए टेक अवे इस क्लास से जो भी शहरों का है वो मैं दे सकूँ आपको. फाइन. सो ये हम पहले सेशन में आज के क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, एंड अगले सेशन में हम फिर फीचर्स यानी कि विशेषताएं, प्लानिंग, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इनका ह्रास, और थ्योरीज कि इन्होंने क्या क्या इसकी थ्योरीज दी हैं, इन चीज़ों को जानेंगे. इसके अलावा हम जो खेती वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो और ट्रेड वगैरह जो भी चीज़ें होता है उसके बारे में भी जानेंगे. एंड वी विल ट्राई कि आज के सेकेंड क्लास में हम फिर क्विज ले लें, कुछ MCQs ले लें इस टॉपिक से. तो प्लीज़ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. हमारी जो मेन सोर्सिंग है वो है इग्नू की बुक्स और NCERT की किताब. बट आपको पता है कि इस लेवल में पढ़ने के लिए NCERT की किताब उतनी विस्तृत नहीं होती है, बट बहुत फंडामेंटल किताब है. तो आई विल मेक इट अपील कि प्लीज़ आप जाएं और NCERT को एज सून एज पॉसिबल उसको फिनिश करें. उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो ही फिर इग्नू के पास आप जा सकते हैं. अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इग्नू के पास फिर मत जाएं, इग्नू के नोट्स के पास आई मीन. और तीसरी जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट इसमें रहेगी वो है हमारी रेफरेंस बुक. इस टॉपिक के लिए मैंने बेसिकली उपेंद्र सिंह को एज अ रेफरेंस बुक मैंने किया है. उसके अलावा एक दो और बुकें हैं, किताबें हैं, उनको बुक्स हैं, उनको मैंने रेफ़र किया है. मैं आपको फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप कोई भी मार्केट में नोट्स के हिसाब से कोई भी बुक वगैरह अगर मिलती है, या फिर अनब्रांडेड किताब जो मिलती हैं, या फिर जो लोकल पब्लिशर की भी कुछ किताबें मिलती हैं जो कि पूरी की पूरी कमिटमेंट करती है कि ये सब कुछ इस पर इंफॉर्मेशन, डेटा, कंटेंट मिल जाएगा, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें. अब फंडामेंटल इसका क्या है कि जो ऐसे किताब को आप पढ़ेंगे, पहले तो इनकी जेन्युइननेस है नहीं. दूसरी बात चीज़ें हैं कि इसमें ना ऐसा कुछ तथ्य मिल के नहीं आएगा जो कि बाहर के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज तथ्य होते हैं. इनमें जो फैक्ट्स होती है वो बहुत जनरलाइज होती है. तीसरी बात ये होती है कि बहुत सुपरफिशियली लिखी जाती है, आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते हो डेटा पे. और सबसे अच्छी बात रहेगी जितना आप ज़्यादा अभी पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी डेट एग्ज़ाम आपकी डिक्लेयर नहीं हो पाएगी, उतना अच्छा आपका कमांड रहेगा और आपके जो भी काउंटर पार्ट्स हैं यानी कि जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपको उसके ऊपर मिलेगा. और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि तो मैंने दी थी बस, पर इस बार से इसकी PDF और जब मैं MCQ कराऊंगा तो उसके भी जो PDF रहेंगे वो भी मैं फिर आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा. तो आप प्लीज़
ज्वाइन मतलब कर सकते हैं कि आप कंटिन्यू रहिए और डिलीजेंट रहिए अपनी पढ़ाई के साथ, निष्ठावान रहिए और लेट्स होप आपका सक्सेस रहेगा, सही रहेगा। तो हिंदी वालों के अनुरोध थे कि कुछ लिख करके नोट्स वगैरह आप दे दीजिएगा सर, बता दीजिएगा सर, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम इसके नेम्स पे आते हैं कि नेमिंग इसकी क्यों हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है क्यों? क्योंकि पहली जो साक्ष्य मिलती है, चाहे पहली एक्सकेवेशन होती है यानी खुदाई होती है, वो हड़प्पा से होती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का और बर्न्स का, अलेक्जेंडर बर्न्स का या फिर मैसन का, उनका क्या रोल था। तो वो लोग वहाँ टीले पर जा रहे थे, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन के नाम वहाँ से आती है कि जहाँ से उसकी पहली एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई हुई होती है। तो ये हड़प्पा वो जगह पहला था, इसलिए मोहनजोदड़ो इसे, जबकि बहुत बड़ा, और कालीबंगन भी एक बड़ा जगह है, लेकिन इसका नाम हड़प्पा इसीलिए पड़ा है। दूसरा इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज अब आप कहो कि ये तो सर रावी रिवर पे है, तो रावी वैली सिविलाइजेशन क्यों नहीं? तो रावी डोंट हैज़ अ वैली समथिंग लाइक दिस देयर, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इंडस वैली जो है ना, इंडस रिवर जो है ना, दिस इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव रिवर। तो अपने, मैं आपको मैप पे ले जाता हूँ। तो आपने ये देखा है कि ये जो रीजन है खास करके, तो इसमें जो मेन जो रिवर है ना, जैसे कि नर्व्स आप बात करते हो कि मेन नर्व्स क्या, फिर छोटे छोटे नर्व्स आते हैं, वैसे इसकी जो मेन नर्व्स बनती है सिविलाइजेशन की, दैट इज एक्चुअली द हड़प्पा, सॉरी दैट इज बेसिकली द इंडस रिवर, ठीक है। तो ये, और इसके जो भी सेटलमेंट्स हैं वो मोर और लेस वो इंडस के अराउंड में ज़्यादा आते हैं। जैसे कि कुछ चेनाब भी कह सकते हो, झेलम, रावी, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसके पास ना अलग अलग सेटलमेंट्स है, छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं। अगर आप ब्रॉड पिक्चर देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के इर्द गिर्द में लाई करती है। जैसे कि मैंने बताया कि यही कारण है, ये मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। तो आप बेसिकली ये समझ जाइए कि जो भी मेन सेटलमेंट्स हैं, सेटलमेंट्स मतलब रहना लोगों का, कस्बा बना के, शहर बना के, गाँव बना के, फाइन, तो वो जो भी है वो इंडस नदी के इर्द गिर्द में थी, फाइन। इसके बाद इसका तीसरा जो नाम दिया जाता है वो है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो जैसे मैंने कि आपको 5 मिनट पहले ही बताया कि अब ये है आपकी इंडस रिवर, ये उनके टेरिटरी है, वो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदियाँ हैं। और इधर आपकी आती है गंगा रिवर, और यमुना तो आप देख ही रहे हो कि इसकी सहायक नदियाँ हो गई है। इनके जो बीच का क्षेत्र जो है ना, ये आलमगीरपुर तक, इधर दैमाबाद तक, उधर रंगपुर तक, उधर धोलावीरा तक, ये जो है ना वो आज की डेट में एग्जिस्टिंग नदियाँ, चैनल्स हैं, छोटी नदियाँ यानी कि एग्जिस्टिंग नदियाँ, मतलब ऐसी नदियाँ जिसका कैचमेंट लेवल जो होता है वो कम होता है, तो उसको छोटी नदी कह सकते हो, या फिर उससे भी कम रहती है तो उसके हिसाब से कह सकते हो। झारखंड की नदियों के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ऐसी जो नदियाँ हैं उसमें क्या एक दो नदियाँ हैं, जैसे कि घग्गर और हक्कर, ये रिवर चैनल जो है ये आज की डेट में ना ये यहाँ से हरियाणा से यहाँ तक जाती है। तो इसी को जो माना जाता है कि हो सकता है कि जब एक थ्योरी दी जाती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, चाहे किसी और चीज़ की वजह से, जब ये ख़त्म हो सकता है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है, तो हो ना हो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये रिवर भी सूख गई हो, या फिर अंतर सलीला हो गई हो, या कि नीचे नीचे बहती हो। तो ये डिस्प्यूटेड है, बट चूंकि ये एक थ्योरी है, और इस थ्योरी के पीछे का तथ्य क्या है, व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज द फैक्ट एंड आर्गुमेंट बिहाइंड दैट, ये मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला जो इसका नाम दिया गया है वो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। वाई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि अभी तक तो कॉपर एक्सकेवेट हो चुके थे, मतलब वो डिस्कवर हो चुका था, मिलने लगा था, टीन भी मिल गया था, दोनों को यूज़ किया गया। अब आपने देखा होगा, जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, कि मोहनजोदड़ो से एक कमर पे हाथ रखते हुए नाचते हुए, है ना, एक औरत का ये हाथ हो गया, नेवर माइंड,
वो हो गया कमर पे ऐसे हाथ रखते हुए मोहनजोदड़ो से एक स्त्री का, या फिर एक डांसिंग स्त्री, कोई कहते हैं कि डांसिंग स्त्री भी हो सकती है, कोई कहते हैं कि महारानी भी हो सकती हैं, क्योंकि ठाठ वाली जो औरतें होती है वो कमर पे हाथ रख के बात करती हैं। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्कूल ऑफ डिस्प्यूट एंड आर्गूमेंट रिगार्डिंग दिस, बट आपको वो उस पर नहीं जाना है, आपको जानना है कि ये जो कॉपर की जो मिली थी, ये जो ब्रॉन्ज जो मिली थी, तो ये कॉपर और टिन दोनों की चीज़ें मिली हुई थी। फाइन, तो इसका मतलब है और भी छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं इस टाइम के जिसमें ब्रॉन्ज की शुरुआत हुई है। तो ब्रॉन्ज एज क्यों, जैसे कि मैंने हड़प्पा का आर्गूमेंट दिया, क्योंकि इस टाइम पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ब्रॉन्ज का यूज होता है। तो सम ऑफ देम हैव एक्चुअली कॉल्ड इट द पायनियर ऑफ द ब्रॉन्ज इन द यूज इन द सिविलाइजेशन। तो क्योंकि कांसा का उपयोग पहली बार हुआ इस सभ्यता में, इसीलिए इसको कांसा युग भी यानी कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। अच्छा, अगर मान लो कि ये फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन नहीं होता, यानी कि पहले नगरीय क्रांति नहीं होती, तो और क्या होता है यहाँ पे? आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है, कब पढ़ा है बताओ? आपने पढ़ा है 600 BC में, लेटर वैदिक एज के अराउंड में। क्या पढ़ा था आपने? मगध, अंग, वत्स, कुरुक्षेत्र, दिस दैट जैन, आपने सब पढ़ा है ना। ये सब जो महाजनपद हुए थे, तो ये भी तो नगरीय थे ना, सिटी सेंटर टाइप का वो रखते थे, क्योंकि उस समय तो स्टेट कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं था। फाइन, वो मतलब एक शहर टाइप का ही हो रहे थे डेवलप, जो एंशियंट जो ग्रीक सिटी सेंटर थे, जैसे स्पार्टा था, एथेंस था, उसी टाइप का था वो। तो ये अर्बन था नेचर में ऑल दो। फाइन, तो तब तक जब तक मैंने बताया ना अभी कि 1924 में जब तक डिक्लेरेशन नहीं होता है, तब तक महाजनपद को ही नगरीय क्रांति पहली भारत में माना जाता था। मतलब इट वाज एक्चुअली दैट वाज एक्चुअली told or claimed to be the first urban revolution on the subcontinent, but because of the discovery of Indus Valley civilization, fine, because of the announcement of this and because of the discovery of facts of the settlement in the urban condition, now this age was also termed to be the first urban revolution ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, क्योंकि जो साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, जैसे कि मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, है ना, प्लानिंग की मिलती है, सीटाडेल की मिलती है, सीटाडेल मतलब दुर्ग हो गया उसको बोलते हैं, तो उसकी जो साक्ष्य वगैरह मिलती है और ये प्रमाणित हो जाता है कि इस काल में एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसकी एक विस्तृत चर्चा मिलती है, इसका विस्तृत डिस्कवरी होता है, इवेंट मिलते हैं उसके, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स मिलते हैं उसके, एंड दैट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एपिसोड्स। तो ये चीज़ इस बात को स्थापित करती है कि महाजनपदा का एरा नहीं, ये जो है यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, यानी कि सैंडो घाटी सभ्यता जो है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये पहली भारत की नगरीय क्रांति थी। ठीक, अब आते हैं, अरे भाई, अब आते हैं हम पीरियड के ऊपर। तो इसके कालखंड के बारे में यानी कि इसकी एज के बारे में बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है। अपना अपना मत होने का कारण क्या है? क्योंकि उनकी डिस्कवरी का जो स्कूल ऑफ पॉइंट था वो डिफरेंट था, उनकी डिस्कवरी का यानी कि एक्सकेवेशन का जो टाइमिंग थी वो डिफरेंट थी, उनकी जो एक्सकेवेशन थी और जो उनकी प्रोसेसेस थी, खास करके प्रोसेसेस थी वो डिफरेंट थी, और इन सब के साथ फिर उन्होंने इसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस यानी कि धारणाएं दिए, यानी कि उसके सॉल्यूशंस दिए। ठीक है, तो इसी के कारण उन्होंने अलग अलग तरीके से और उसकी व्याख्या भी की कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और नहीं कह रहा हूँ। बट पहली बात कि जो आपको समझ लेनी चाहिए कि व्हाट इज roughly considered to be the greater and least extent of this period of Indus Valley civilization actually is this, means from 3500 BC to 1300 BC. Okay, they haven't fetched any kind of information beyond to this. What is this? 3500 BC.
and below to this. And what is that? 1300 BC. So even the excavators and the archaeologists like Wheeler, he actually suggests, where is he? He suggests कि after 1500 BC, Rig-Vedic period starts. Fine. So least he can goes it like 1500. So this is something how कि 1300 हिंदी में बता दो कि जितने भी खोजकर्ताओं ने थे उन्होंने अपनी अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण, अपनी अपनी धारणाओं के कारण, अपने अपने बैकग्राउंड के कारण, और चूंकि लोकेशन भी हमेशा डिफरेंट हुआ करती थी। अब कोई तो ऐसा इंसान तो नहीं जैसे हम लोग आज पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, बट जब शुरुआत में पुरातत्विक लोग जो जाते हैं वहाँ पे जो वो रिसर्च करते हैं, वो उनकी पूरी की पूरी जीवन जो है, उम्र जो है, वो सिर्फ एक ही साइट पर निकल जाती है ना। तो इसीलिए कि साइट्स के जो आउटकम्स हुए उसके हिसाब से इसकी डेट्स जो है वो फ्लक्चुएट करने लगी। किसी ने एज मच एज कोई 3500 BC के पीछे तक गया और कुछ लोग 1300 BC तक ही स्थिर हो गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि 2350 तक भी था, या कुछ लोग कह सकते हैं कि 2750 से शुरू भी होती है। ये इनकी अपनी अपनी मत, अपनी अपनी धारणा है, क्योंकि उनका अपना अपना उसमें थॉट प्रोसेस है, उस पर दृष्टिकोण है। ओके, तो एक मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि जो प्री हड़प्पन एज है, यानी कि प्राक हड़प्पन एज है, वो है 3500 से लेकर के 2600 तक। मच्योर्ड स्टेज है, यानी कि इस पे सब कुछ जिसमें उनकी सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं का उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जिसमें आई थी। इन द प्रॉस्पेरिटी इन द सिविलाइजेशन एक्चुअली एग्जिस्टेड और परसिस्टेड फ्रॉम 2600 to 1900 BC एंड द पोस्ट हड़प्पन एज। व्हाट डज दिस पोस्ट हड़प्पन एज मीन्स नाउ? पोस्ट हड़प्पन एज मतलब एज खत्म हो गया या हड़प्पा खत्म हो गई? नहीं। एक्चुअली व्हाट happens in a civilization that you find a sense of deterioration in the civilization. अच्छा कैसे? अच्छा मान लो कि मैं ही हूँ, चाहे आप हो, 60 साल तक, 65 साल तक, 70 साल तक हार्डली you go to do work and you started when कम से कम अब 16 साल 18 साल, मतलब लेबर लोग को हटा दो आप, कि पढ़ाई को वो मतलब क्या कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर दे, 13 साल में चल जाए, 10 साल में चल जाए। नॉट दैट, मतलब विथ प्रॉपर एजुकेशन यू कैन स्टार्ट इट एज अर्ली एज कैन 16, 18, 21 समथिंग लाइक दिस। सो दिस एज जैसे कि इंसानों में होता है, दिस एज, द एज इन बिटवीन 18 to 62, लेट कंसिडर, सरकारी फैक्ट्स पे नहीं जाते हैं, ये एक एज हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने की। अगर कोई इंसान इस उम्र में है, यानी कि 18 से 60 साल के बीच में, और वो इस लायक है कि वो काम कर सकता है, बट वो काम नहीं करता है, तब एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ओके, तो इसी हिसाब से, मतलब ये कोई जनरलाइजेशन नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि इससे पहले भी तो इसने 18 साल जिया था ना, और इसके बाद भी मान लो ये 80 साल तक है तो जिएगा, लेकिन इस एज में ये कंट्रीब्यूट कर रहा था। कैसे? फिजिकली काम पे जाके, मेंटली मन लगा के, इकोनॉमिकली पैसे कमा के, सोशली स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करके। बट इससे पहले ही वॉज एन इन्फेंट, चाइल्ड और टीनेजर, एंड आफ्टर डेट ही बिकम ओल्डर। सो दिस एक्चुअली कैन बी रिलेटेड विद दिस फेज ओनली, कि बिफोर दिस वो एक सिविलाइजेशन की शुरुआत नहीं थी, बट वो सेटलमेंट की शुरुआत हो चुकी थी, लोगों की रहने की, उठने बैठने, खाने, जैसे मैंने लास्ट न्यूलिथिक एज में ही आपको बताया था। डोमेस्टिकेशन हो गया, एनिमल ब्रीडिंग हो गई, एनिमल रियरिंग हो गई, प्लांट डोमेस्टिकेशन हो गया, है ना, कपड़े आ गए, फायर आ गए, तो ये सब कुछ हो रहा था। बट दिस एक्चुअली डजंट बिकम द पार्ट ऑफ अ सिविलाइजेशन। आपने कभी पढ़ा है कि न्यूलिथिक में, मिजोलिथिक में, इन सब चीज़ों में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी? दे टॉक अबाउट द ह्यूमंस, दे टॉक अबाउट द लिविंग, दे टॉक अबाउट द एवरीथिंग एक्टिविटीज, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन और कल्चर देयर। ऑल राइट, सो दिस इज द सेम पीरियड, प्राक हड़प्पन एज और प्री हड़प्पन एज। लेटर ऑन this is the mature period, and finally consequently to that, from 1900 to 13, why this 600 of year? Because there was a degradation, diminishing factors in the civilization. How could it be like this? अब मान लो कि अगर कोई, जैसे 7 शहरों की मैं बात कर रहा हूँ कि 7 को आइडेंटिफाई किया गया है, डिक्लेयर किया गया कि ये शहर थे,
तो 1 2 3 4 करके वो डिग्रेड करने शुरू हो गए होंगे। एक बैग में तो सातों के सातों शहर खत्म नहीं हो गया होगा, तो यानी कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का हास हो गया होगा, या फिर लोगों की जो लाइफ स्टाइल उस समय तक रही होगी, या फिर नगर प्रणाली यानी कि अर्बन टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वो उनकी चैलेंज हो चुकी होगी, कोलैप्स कर चुकी होगी। कुछ भी हो रहा होगा ना जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था, एंड दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड इन द फुलफिलमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, इजंट इट? सो अब आप जैसे कि आपने ये पढ़ा, कैथा सिविलाइजेशन आप देखते हो या फिर जॉर्वे देखते हो, हाँ, तो देयर वेयर, अब मान लो आप कि दिस इज इंडियन पेनिनसुला, गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड यूएई देन, ठीक है। अब ऐसे 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 और ऐसे करके, तो ये आपका हो गया आलमगढ़, ये हो गया आपका दायमाबाद, और यहाँ पे हो गया रंगपुर। मैं इसके ऊपर भी जाऊँगा कि आखिर लोअर पॉइंट क्या है, मांडा, कश्मीर, एंड देन जो भी है, दिस इज इन बालूचिस्तान, फाइन, ओके। एक मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिस्टेंस थी ये समथिंग अराउंड 1100 थी, और ये जो डिस्टेंस थी ये समथिंग अराउंड 1600 किलोमीटर्स में है। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट है कि जैसे कि मान लो कि ये दायमाबाद के पास, या दायमाबाद ही आज की डेट में, जॉर्वे कल्चर जो वहाँ पे आपको मैंने बात किया, या फिर आहार कल्चर के बारे में जो मैंने आपको बात किया, या फिर कायस्थाबाद के बारे में जो आपको बात किया, या फिर बीकानेर में जो सोन करके जो सिविलाइजेशन मैंने उसकी बात की, तो इन सिविलाइजेशन को मेन सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा गया? वाई दे आर नॉट कॉल्ड द पेरिफेरियल सिविलाइजेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन? ये लेटर ऑन की सिविलाइजेशन क्यों हो गए? कुछ साइंटिफिक कारण होगा ना, लेकिन सभ्यता कहा गया उनको, वो सिविलाइजेशन कही गई है उनको, क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सटेंट था ना, दैट वाज वेरी वास्ट टेरिटोरियली, जियोग्राफिकली, पहली बात, और इनमें ना कुछ यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता दिखाई देती थी सभ्यता के तौर पे, ठीक है। तीसरी बात, इन क्या कहते हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन भी थोड़ी बहुत होती थी। आपको पता है कि ये इधर ईरान तक में, मेसोपोटामिया तक में करेंसी मिली है, कॉइनेज मिला है, कुछ लोगों ने निकाला है ना कि इसकी एक्सटेंट की तारीखें कैसे कैसे हो सकती, क्या क्या हो सकती हैं, तो ये कुछ कुछ कारण हैं आपके। लेकिन ये जो छोटी छोटी थी ना, ये बहुत ही अपने आप में विशिष्ट थी, और ये अपने आप में इनकम्प्लीट भी थी। तो जैसे कि मान लो कि आप कह सकते हो कि कल्चर के हिसाब से, यानी कि पॉटरी के हिसाब से, ऑर्नामेंट के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से वो एग्जिस्ट की, लेकिन अगर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करते हो तो वो तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, फाइन। तो ऐसे ऐसे एक दो करके कुछ कुछ उसके डायमेंशंस थे जो कि वहाँ पे उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे, एंड दैट एक्चुअली मेड देम वेरी निश, वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड वेरी अनकॉम्प्रिहेंसिव with relation with the Indus Valley civilization. So this is the reason why कि मैंने जो ये पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन समझाया है, ये इसका एक कारण है। कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं पॉइंट्स और बताता हूँ कि ये जो डेट्स हैं इनकी जो हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली जो इनकी डेटिंग की गई है वो है रेडियो कार्बन प्रोसेस के ऊपर, फाइन। दिस इज द प्रोसेस। इनकी जो स्क्रिप्ट है, जो भी भाषा लिखी गई है वो स्टिल उनको पढ़ा नहीं जा सका है इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड अनडिसाइफर्ड, तो इट एग्जिस्ट। फिर मैंने जो बताया कि मेसोपोटामिया उसके दो शहर हैं, उर एंड किश साइट्स, शहर नहीं थे साइट्स थे, तो जो इनके दो जो साइट्स हैं मेसोपोटामिया के, वहाँ से कुछ कॉइनेजेस मिले हैं जिससे स्टैब्लिश की गई इनकी एजेस को। तो वो अपर एज में भी थी और वो लोअर एज में भी थी, लाइक कि आप 3500 तक भी जा सकते हो और अब 1300 तक भी जा सकते हो। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1900 के बाद ना, यानी कि ये जो लोअर एज था, इसके बाद से ही देयर वाज
degradation in uniformity and that actually enabled regional features, जो कि मैंने अभी कायथा वगैरह जोरवे वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो ये जो डिग्रेडेशन है ये 1900 से ही शुरू हो गई थी। और सबसे बात है कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्रोनोलॉजी, यानी कि जो क्रमवाद तरीके से जो होता है ये सबसे सब ने इसको एक्सेप्ट किया है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्रोनोलॉजी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट अब पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं उन आर्कियोलॉजिस्ट का, हिस्टोरियन का, कंट्रीब्यूटर्स का, कि उन्होंने अपना कैसा कैसा वो दिया है। तो सबसे बड़ा जो इस पे नाम आता है वो है सर एम विलर। इन्होंने इसकी डेट जो दी है वो 2500 से लेकर के 1500 BC तक इस्टेब्लिश की है कि दिस वुड हैड बीन द मच्योर्ड स्टेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड दैट ही एक्चुअली क्लेम टू बी इट फ्रॉम 2500 to 1500 BC. That was given by M. Wheeler. ठीक है, सर एम विलर। एम हियर मीन्स मार्टिमर, तो सर मार्टिमर विलर। उन्होंने मेसोपोटामिया के राजा था सारगोन, उसका एरा था 1350 BC। तो उसके अराउंड उन्होंने इसकी स्थापना की, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की, कि इसी की रिगार्डिंग में अगर हम रखते हैं तो ये एज ही होगा प्राइम, क्योंकि उन्होंने ये भी माना कि 1500 BC के ऑनवर्ड वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक पीरियड इंडिया में वो शुरू हो चुकी थी। इसके बाद डीपी अग्रवाल आते हैं, धर्मपाल अग्रवाल इनका नाम हुआ, तो ये भी फेमस है। और इन्होंने इसकी जो ड्यूरेशन दी है वो है 2350 से लेकर के 1750 तक के ईसा पूर्व तक। उनका ये मानना था कि 1750 से डिग्रेडेशन शुरू होती है और 1500 तक यानी कि 250 साल में ही ये ख़त्म हो जाती है, और फिर वैदिक पीरियड जो है उनके हिसाब से वो भी 1500 में ही शुरू होती है। उसके बाद सन जॉर्ज मार्शल, अब क्योंकि 1924 में इन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो इन्होंने जो डेट दी है वो है 3250 से लेकर के 2750 तक BC। और इन्होंने ये माना है कि डेवलपमेंट एंड डिग्रेडेशन शुड नॉट बी यूनिफॉर्मली अटैच। फाइन, उन्होंने ये माना है कि जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिग्रेडेशन हुई यानी कि ह्रास हुआ, और जो डेवलपमेंट हुई यानी कि जो विकास हुआ, क्योंकि विकास कभी एक साइड में हो रहा था, तो हो सकता है कि वो जो डेवलपमेंट हुई तो वो धीरे धीरे अलग अलग जगह पहुंच रही होगी। तो डिग्रेडेशन भी जो है ना वो एक साथ ही नहीं होता होगा, पहले कहीं एक जगह हो गया होगा लेकिन कुछ जगह तो सस्टेन कर रहा होगा ना। तो इसीलिए ना इन्होंने बहुत एक ब्रॉड एज जो टर्म पीरियड है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए रखा है, और उनका मानना है कि ये तकरीबन इस एज में रखा है। तो इनके हिसाब से थोड़ा जल्दी ख़त्म भी हो गया वो, तो मतलब जल्दी शुरू भी होती है जल्दी ख़त्म भी होती है। बट वाट आई बिलीव कि अगर इतनी एज पे वो ख़त्म मतलब मैच्योर्ड स्टेज ख़त्म हो गई होगी, तो उसके बाद से अगर 1500 भी साल मान लो आप पे अगर ऋग्वेद आती है, तो इतने 1250 साल तक फिर वो क्या हुआ। तो एक ये भी चैलेंज रहता है इनके साथ। इसके बाद फिर मकै हैं जो कि जिन्होंने कि मोहनजोदड़ो एक्सकेवेशन के वो पार्ट थे, और उन्होंने अपना 300 सालों का मोटा मोटी मैच्योर्ड पीरियड बताया है, जो कि 2800 से लेकर 2500 तक है। उसके बाद MS वत्स है जो कि हड़प्पा के ही उत्खनन से रिलेटेड है, उन्होंने 3500 से लेकर 2500 तक दिया है। और फिर डेल्स हैं जिन्होंने जितनी भी वो साइट्स थी, जितनी भी 7, 8, 10 साइट्स थी, 7 तो शहर तो उसके अलावा साइट्स उन सब की पढ़ाई की है, यानी कि रिलेटिव स्टडी ऑफ कॉन्टेम्परेरी साइट्स हड़प्पन साइट। उन्होंने डेट दी है वो 2900 से 1900 तक दी है। दीज ऑल आर द मैच्योर्ड डेट्स। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं था या इसके बाद बिल्कुल से ख़त्म हो गया, एक मैच्योर्ड डेट जो मैंने बताई है वो है। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट।
इफ़ यू वांट आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी वहाँ के लोकल लोगों के बारे में बात करते हैं, इतनी सिटी के बारे में बात करते हैं। इतनी सिटी तो पहली जो अराइवल की जो बात होती है, जो मेजर जो बात होती है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। झारखंड के खास करके जो कोलेरियन ट्राइब्स हैं, खास करके जो छोटा नागपुर के जो ट्राइब्स हैं, उसमें भी जो रांची प्लेटो के आसपास जो सिंहभूम में है, कौन कौन सबसे बड़ी ट्राइब? संथाल। देन आफ्टर ओराव नहीं, मुंडा। ओराव द्रविडियन हो गई, ओराव सॉरी मुंडा। उसके बाद हो। ऐसी जो जो भी ट्राइब्स हैं, इनकी कैटेगराइजेशन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलाइड कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट आई मीन टू से कि इफ यू कंसिडर दिस टू बी इन इंडिया, फाइन, and you must be knowing that this is the region of Australia, okay, this is Indonesia, ठीक, fine, this is New Zealand, फिजी विजी, माइक्रोनेशिया का पार्ट हो गया, पॉलिनेशिया का पार्ट इधर हो गया। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ना, इट एक्चुअली कम्स अंडर एम्बिएंट ऑफ दिस ये जो हैं इस रीजन के जो पॉपुलेशन, जो इतनी इथनिक पॉपुलेशन है, इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। एक्चुअली क्या होने कि ऐसा नहीं हो कि इंसान एक जगह से निकला, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में, या पहली क्लास मतलब पूरा पाषाण के क्लास में, राइट, पैलियोलिथिक एज में जो मैंने आपको बताया था, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो अफ्रीका से निकला और घूमने लगा। वो इंसान के तौर पर नहीं निकला था, वो उनकी इवोल्यूशन हो रही थी, होमो सेपियंस के तौर पे वो डेवलप कर रहे थे, होलोसीन आ रहा था, फेवरेबल मौसम हुआ था, ठीक है ना। तो ये एक पहली क्लास में आप पढ़ लेना। तो इस जगह पे जो आकर के बस गए ट्राइब्स, इस रीजन पे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यहाँ से आती है। उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आगे की क्लास में। तो जो आज के डेट में जैसे कि संथाल्स वगैरह हैं और मुंडा वगैरह हैं, चाहे हो वगैरह हैं, तो इनके बारे में दो थ्योरी होती है कि एक तो ये इस जगह से, यानी कि साउथ चाइना के आसपास से कहीं से, ये ऐसे 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 होते हुए थाईलैंड, म्यांमार होते हुए ये आज की डेट में छोटा नागपुर में आए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में ना कुछ कुछ ऐसे ही शब्द हैं, खोमेन जो थाईलैंड में बोली जाती है, और उनकी वर्णी भी कुछ वैसी उस हिसाब से है जो कि उनकी लैंग्वेज से मिलती है। ऑल्दो एक थ्योरी ये है कि मान लो कि ये भारत है, तो ये लोग है ना इसी जगह से, एक तो मैंने बताया कि ये यहाँ पे आ गए, और एक माना जाता है कि ये ऊपर एकदम मंगोलिया, तिब्बत वगैरह होते हुए फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में ये आ गए थे। तो इस थ्योरी में कुछ कुछ खामी है, बट क्योंकि दोनों थ्योरी है, बीइंग अ मुंडा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ झारखंड ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। तो ऑरिजिन आप जान जाओ, जो मैंने आपको बताया कि ये ऑस्ट्रेलिया है मान लो, तो ये जो बेसिकली जो मोटा जो रीजन है, तो दिस वे द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली लैंडेड इन द इंडस वैली एरिया, ठीक। ये इनके साथ एक प्रिविलेज जाती है, प्रिविलेज नहीं जाती है, मतलब एक प्रिविलेज भी कह सकते हो कि फर्स्ट थिंग जो कि उसके साथ एसोसिएट की जा सकती है। तो ये है कि दे वर द फर्स्ट ग्रुप, और ये आज की डेट में जैसे मैंने आपको बताया है, आप जान रहे हो कि मुंडा हो और संथाल, तो ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशंस में ऑब्वियसली ये आ जाती है, सबसे बड़ी नहीं मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन में ये इंडिया में अब आज की डेट में ये इस्टेब्लिश है। फाइन, ये तो हुई इनकी बात। अब हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन, ओके, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरियन का हिंदी में हो गया भूमध्य सागरीय, ठीक। तो भूमध्य सागर आपका, आप यहाँ इंडिया में आ गए और फिर या पाकिस्तान, ईरान, इराक होते हुए इधर आप चले गए, तो यहाँ पे एक मेडिटेरियन सी है, ग्रीस के ऊपर, टर्की के पास, ठीक।
एशिया माइनर में, तो इस रीजन से जो ट्राइब्स आते हैं ना, क्योंकि मेडिटेरियन इनकी ओरिजिन हो गई, लोकेशन हो गई, तो इस रीजन से जो आते हैं ना उनको मेडिटेरियन कहते हैं। आज के डेट में इंडिया में जैसे कि झारखंड में जो ओरांव जनजाति है, जो माहली जनजाति है, उनको द्रविडियन ट्राइब कहा जाता है। तो ये, और ख़ास करके जो साउथ इंडियन भी जो कोड़ा वगैरह वो जो वहाँ पे हैं ट्राइब्स हैं तमिलनाडु के, उनको भी द्रविडियन ट्राइब ही कहा जाता है। तो इनकी जो ओरिजिन होती है और अराइवल होती है ना, ये यहाँ से मानी जाती है। तो इनका भी माना जाता है कि ये यहाँ पे आने से पहले, नीचे आने से पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले आए होंगे। इनके साथ कुछ पॉइंट जाती है, कंक्लूडिंग पॉइंट जाती है कि कंसीडर टू बी द बिगिनर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनका माना जाता है कि प्रोटो जो ऑस्ट्रेलाइड है उनसे भी पहले ये आ गए थे और इन्होंने ही शुरुआत की थी। वैसे भी जैसे भी आप ओरांव की अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाओगे, उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ोगे, तो उनका क्लेम है कि उनकी दंत कथाओं में ना इस चीज़ के बारे में है, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने वो यहाँ पे पहले सेटल थे, उसके बाद उनको यहाँ से हटाया गया था। ओके, फिर तीसरी जो जनजाति है, इसमें एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया भी था कि साउथ इंडिया की जो जनजातियाँ हैं, जो तमिल बोलती हैं, कन्नड़ा बोलती है, तेलुगु बोलती है, उनकी जो लैंग्वेज है, जो वर्णी है, वो बलूच में रहने वाली बलोची यानी कि ब्रहुई लैंग्वेज, उनमें दोनों में मेल खाती है, ये इनका क्लेम है। इसके बाद मंगोलाइट्स आते हैं। आपको पता है कि मंगोलिया चाइना के ऊपर में कंट्री है और रशिया के बीच में आता है। तो यहाँ से ये फिर ये इंडिया, ये तिब्बत से बगल से होते हुए ये फिर इंडिया में आ गए। तो ये अपर हिमालयन ट्राइब है और इन्हीं का आज की डेट में जो नॉर्थ ईस्ट जो भी जितने भी ट्राइब पाए जाते हैं, उनकी जो रेस है वो मंगोलाइड रेस से ही आते हैं। और फाइनली एक अल्पाइन ट्राइब होती है जो कि आज की डेट में सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ी बहुत गंगेटिक प्लेन में ये होती है। तो ये बेसिकली 4 इथनिसिटी हैं जो कि आपको जानना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में। ये जियोग्राफिकल मैप होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और आप इसकी एक्सटेंट देख सकते हैं और आप इसका आइडिया भी लगा सकते हैं। कुछ लोग इसको ट्रायंगल बोलते हैं और कुछ लोग चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि कुछ रेक्टेंगुलर भी ले जाते हैं इसको, और कुछ लोग इसको ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणीय बनाते हैं। बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मांडा से लेकर आलमगीरपुर तक आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, आलमगीर इन वेस्टर्न यूपी से लेकर के आप रंगपुर तक या दैमाबाद तक आप एक लाइन खींचोगे, और वहाँ से लेकर के आप सुक्ता गेंडोर तक आप एक लाइन खींचोगे यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के फिर आप मांडा तक आप एक लाइन खींचोगे। तो ये जो है ना ये इसमें 4 साइड्स बनते हैं, तो ये ट्रायंगल तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो एक बुक थी रांची की फेमस पब्लिकेशन है, लोकलाइट पब्लिकेशन है, तो उसने इसको ट्रायंगल दिया है। बट फिर मैंने जो आपको शुरू में बोला कि वो कॉम्पिटिटिव बुक है, क्या कहते हैं कि रेफरेंस बुक नहीं है, तो आप उसको ओवरलुक कर सकते हो, यानी कि आप उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हड़प्पा जो है वो उत्तरीय पार्ट पे है, मोहनजोदड़ो एकदम तटीय से नज़दीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो साइट्स हैं जैसे कि हिंदुस्तान में आता है तो वो एक धोलेवीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, रंगपुर एक साइट ही होगा, शहर उस समय का नहीं था। कालीबंगा हो गया जो कि आज की डेट में हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का वहाँ आता है, और फिर रोपड़ हो गया जो कि पंजाब में है, और आलमगीर जो है वो फिर से आपको मैंने बताया कि बरेली है, वहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो ये 1 2 3 4 5 साइज जो हैं बड़े वो आज के हिंदुस्तान में हैं, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो 2 साइट्स हैं बड़े बड़े यानी कि शहर जो हैं ये आज के पाकिस्तान में हैं। ऑलराइट, इसकी हाईएस्ट एक्सटेंट जो है वो मांडा तक जाती है, और जो लोवेस्ट है वो रंगपुर या दैमाबाद तक जाती है। अब इसके ऊपर डाउट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो
जो मेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी कि उपेंद्र सिंह है और एस.एन. पांडे हैं, उन्होंने दैमाबाद को किया है, और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने रंगपुर को किया है। तो एक हिस्टोरियन हुए रंगनाथ राव, इन्होंने बोला पूरब से पश्चिम ये 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है और उत्तर दक्षिण 1100 किलोमीटर एक्सटेंड है। इसको फैक्चुअली आप प्लीज याद कर ले, लिख ले जहां भी है। 1600 किलोमीटर बायां से दायां और ऊपर से नीचे 1100 किलोमीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा है और लंबाई का क्षेत्रफल जो है वो रिलेटिवली कम है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, और मांडा जो है वो आज के शायद इंडिया में ही आता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा यूनियन, हाँ इंडिया में ही आता है, क्योंकि कश्मीर वाला तो पोर्शन है वो पीओके में नहीं आता है, इधर में ही आता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो भी मैंने आपको बता दिए। फाइन, कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको और फीचर्स बता देता हूँ। इसको तो हम डील बात में करेंगे, जब हम शहरों के बारे में पढ़ेंगे तो फिर से इसको डील कर लेंगे। एक हाइलाइट्स का पोर्शन है जो कि हम बता देते हैं आपको, आपके साथ बात कर लिया जाए कि जैसे कि आपने अभी मैप में भी देखा कि ये जो सिविलाइजेशन है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम मार्जिन पर, यानी दिस लाइज ऑन द नॉर्दर्न वेस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एज यू कैन सी दिस इज द नॉर्दर्न वेस्टर्न मार्जिन। सो इफ आई अगेन have to make a map something like this, so if you consider this to be in India and this is, तो ये मान लो कि पाकिस्तान से होते हुए है, तो ये इस रीजन में है, तो इट मीन्स ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो ये पूरा इस रीजन, तो नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में वो आता है। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, द हाईलाइट पॉइंट। Second thing, main thing, the matured stage lies in Punjab and Sindh mainly, not only। तो आप इसको only से मतलब सिर्फ पंजाब और सिंध में ही मत ले लेना, दो कुछ साइट्स हैं आउट ऑफ पंजाब, आउट ऑफ सिंध। अब जैसे कि कालीबंगन के बारे में आप बात करते हो तो वो हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में आता है, ओके, तो वो पंजाब में तो नहीं आता है, बट दैट इज ओनली वन टाउन और साइट। आई एम वॉट मैंशनिंग हियर कि जो मच्योर्ड स्टेज वाले जो साइट्स हैं ना, जो भी सातों शहर हैं, वो बेसिकली सिंध और पंजाब में ही आते हैं, बेसिकली आते हैं, बट इट डजंट मीन कि एक्सक्लूसिवली हैं, यानी कि सिर्फ इसी पोजीशन जगह पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है, फ्रॉम हियर इट वाज एक्सटेंडेड टू ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, चलो मैप में ही देख लो, कि मान लो कि अगर इसकी डेवलपमेंट एक हड़प्पा में होती है और एक मोहनजोदड़ो में होती है, अगर दो है, तो इस जगह से है ना ये साउथ गया और इस जगह से है ना ये ईस्ट गया, ये इधर नहीं गया और ये बहुत ज़्यादा इधर भी नहीं गया। इधर में आपको जैसे कि अफगानिस्तान में दो साइट है, कश्मीर तक भी जाता है, लेकिन उसकी स्प्रेड वैसी नहीं हुई, ठीक है ना, जो कि इधर हुई। मच पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दैट एक्चुअली इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन गिव्स, क्योंकि नदियों का इसमें पंच नदियाँ जैसे हो गई इसमें, उधर तो फिर बालू वगैरह हो गया, क्वेटा वगैरह आप जाते हो तो उधर तो आप देखते हो कि माउंटेनियस रीजन फिर आ जाता है ना। तो इसकी जो एक्सटेंड होती है, और साउथ मतलब साउथ इंडिया नहीं, वो रंगपुर और दैमाबाद तक, मतलब दैमाबाद तक इस्टेब्लिश होती है। दैमाबाद आज के डेट में अहमदनगर जो आता है जिला महाराष्ट्र में, वहाँ पड़ता है, तो वहाँ तक होती है और ये ईस्ट में जाती है। ये मेरी तीसरी पॉइंट थी। चौथी पॉइंट मेरी क्या है कि बाय 1947 ओनली 40 साइट्स वे डिस्कवर्ड।
तो जैसे कि आप जानते हो कि 1921-22 से शुरू हो जाती है कहानी इसकी, 24 में डिक्लेरेशन होती है, तो अगले 22-23 साल में कितनी ही डिस्कवर हुई हो, इतनी बस 40 तक ही गई थी। फाइन, तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और आज की डेट में 1200 से ज़्यादा, हालांकि मैं साफ मैं बात करूं तो अगर मेरे पास पुरानी जो कि उपेंद्र सिंह है, आज से 7-8 साल पहले की, उन्होंने 1022 साइट्स के बारे में लिखा है, बट जो उसके बाद मैंने जो पढ़ा है तो वो 1200 से ज़्यादा, जैसे कि मैं जो एस एन पांडे की बुक में बोल रहा हूँ वो 1400 के अराउंड कुछ लिखते हैं। तो ये 1200 से ज़्यादा साइट्स आज की डेट में डिस्कवर किए जा चुके हैं। बट एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई, पुरातात्विक खुदाई सब में पॉसिबल होती नहीं है, तो सब में नहीं हुई है, वो लमसम कुछ 80, 85, 90 में ही हुई है। और इन 1200 साइट्स में रफली 800 इंडिया में है और 400 पाकिस्तान में है। दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट। तो आप कह सकते हो कि 1:2 का रेशियो है, 2 भारत में आता है, 1 पाकिस्तान में जाता है। Only 7 has been given city status. This has I have been telling to you since the beginning of this class कि only 7 को ही दिया गया है, और वो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली एंड धोलावीरा। बनावली इज इन हरियाणा। However, most sites are found in Indus Ganges river basin। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो लुप्त सरस्वती का जो कॉन्सेप्ट है, घग्गर खाकरा का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इंडस से लेके जो गैंगेज के बीच में जो रीजन है सबसे ज़्यादा, यानी कि उनकी जो एक्सटेंट जो अभी मैंने बताया आपको 2 मिनट पहले कि जो पूर्व में हुई थी, तो उसी रीजन में क्योंकि फेवरेबल कंडीशन था, मैदानी इलाका था, पानी वगैरह थी, तो उधर वो फैली, वो नेचुरल कोर्स में उधर फैली। फाइन, घग्गर हाकरा रिवर क्लेम टू बी सरस्वती रिवर, ये तो मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं। एंड फैक्चुअली इज इंपॉर्टेंट कि अफगानिस्तान में 2 साइट्स मिले हैं। सो 2 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड और अनकवर्ड इन अफगानिस्तान। एक है नॉर्दर्न अफगानिस्तान ऑन द बैंक ऑफ ओक्सस रिवर एंड दैट इज शोर्टुगाई। शोर्टुगाई कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं, वॉट एवर यू प्रीफर इट, यू बेटर नो, आप समझ लो। तो शोर्टुगाई ऑन द बैंक ऑफ ओक्सस रिवर एंड मुंडीगाक, now this is in Kandahar region of Afghanistan, means that is on the leftern margin, यानी कि ईरान के बगल में, पाकिस्तान से जो मिलता है बलूचिस्तान, उसके बगल में ये रीजन है। ये भी किसी रिवर के नदी के ही किनारे में, बट दैट इज नॉट वेरी फेमस, बेटर यू विकिपीडिया इट। बट मुंडीगाक एंड शोर्टुगाई आर 2। चलो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप इसका मतलब ये कह सकते हो कि इसका विस्तार फिर अफगानिस्तान में था? अगर एग्जाम में पूछ देता है कि कंसीडर द फैक्ट दैट शोर्टुगाई दैट द कपल ऑफ साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी कि 2 साइट्स को अफगानिस्तान से डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है, तो यानी कि इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन अफगानिस्तान में भी था। याद करिए, मैंने आपको मेसोलिथिक एज में क्या पढ़ाया था। मेसोलिथिक एज को हिंदी में मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 साइट, एक गुजरात में लंखनाज है और दूसरा विंध्याज रेंजेस, वहाँ यानी कि आज के यूपी में मिर्ज़ापुर के पास, वहाँ से 2 जगह से पॉटरी मिली थी। बट does it concludes कि Mesolithic age has anything to do with the pottery? इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि अगर इन दोनों साइड से मध्य पाषाण काल में पॉटरी मिलती है, यानी कि मृतभांड मिलते हैं, तो क्या इसका मतलब निकाला जा सकता है कि उस एज में मृतभांड एक विशेषता के तौर पर रहा होगा? देखिए, कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज़ अ पेपर, हिस्ट्री इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूएशन एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत आपको मतलब 2 क्लास में ही आपके सामने एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट फिर से आ गया कि सिर्फ 2 साइट्स हैं दूसरे क्षेत्र में, या आज की ज्योग्राफी तो एक अलग होगी लेकिन दूसरे क्षेत्र में, तो क्या वहाँ भी मानी जाएगी?
द प्रॉपर आंसर, जैसे कि मैंने आपको मेसोलिथिक एज के बारे में यानी कि मध्य पाषाण के एज में बताया था कि दैट इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि लोगों के हाव भाव में, उठने बैठने में कहीं भी मृदभांड का एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वो नहीं मिलता है किसी और भी मध्य पाषाणकालीन स्थल से। अब मध्य पाषाणकालीन स्थल में भीमबेटका भी आता है, उसकी पेंटिंग में तो कहीं नहीं मिला। फाइन, बिलान घाटी आती है, सोन घाटी आती है, वहां से तो कहीं नहीं मिला। पूरा का पूरा आपका सेंट्रल इंडिया का रीजन आता है, आप कश्मीर तक जाते हो, बुरजाओं की बात नहीं करो, वो न्यूलिथिक में था, मतलब नॉर्मली रहने सहने के हिसाब से, लेकिन उसकी एग्जाम्पल कहीं और से नहीं मिलती है। यानी कि या तो ये लास्ट स्टेजेस में शुरू हुई होगी, या तो ये रिलेटिवली बहुत रीजनल हो गई होगी, स्तरीय लेवल की नहीं थी, वो रीजनल लेवल पर रह गई होगी। उसी हिसाब से ये जो शॉटुघाई और मुंडीगाग ये जो हैं, तो ये दो साइट्स हो गए। आज के डेट में आप कह सकते हो कि इसका एक्सटेंड था, बट अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ, या फिर इस पूरा का पूरा अफगानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ दिस, इट्स नॉट ट्रू। ये सिर्फ दो ऐसे साइट्स हैं जहां ये स्टैब्लिश हो गई चीज़ें। तो दिस यू कैन से दैट दिस वाज वन एग्जाम्पल आउट ऑफ एक्सेप्शनल। फाइन, क्योंकि जैसे और भी छोटे छोटे जो साइट्स हैं ना, क्योंकि देखो मेन क्या होता है ना कि जो नगर जहाँ जहाँ बना उसके हिसाब से हम उस हिसाब से कस्बे बने, गांव बने, सेटलमेंट्स बने। लेकिन जहाँ पे आपको सिर्फ दो साइट्स मिला, यानी कि एक इस क्या कहते हैं कि शॉटुघाई और एक मुंडीगाग यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो उसके अलावा तो कुछ नहीं मिला ना, तो वो एक्सेप्शनल हो गए। बट क्योंकि आपको रिमेंबर करना है कि क्या उसका क्या अफगानिस्तान में नमूना मिला था, यानी कि उसका एग्जाम्पल मिला, तो हाँ, बट क्या आप पूरी तरीके से बात करोगे तो वो चीज़ें नहीं में आती हैं। इन दोनों का नाम आप याद रखना अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में। चलिए अगले क्लास से हम बात करेंगे जो भी इनके शहरें हैं उनके फीचर्स के बारे में डिटेल में, और क्योंकि इसी क्लास में करना था बट अभी अगले वाले सर की टाइमिंग हो गई है। और जो 7 बड़े बड़े शहर हैं उनको देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स, उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स, प्लानिंग, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और थ्योरीज जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच टू बी विद।